Now come to a chapter called plant-water relation. Come to a chapter called plant-water relation. In state board, the name of chapter is plant-water relation. In your new syllabus, it is kept in 12th standard. Otherwise, this chapter belongs to 11th standard. और CBSE में NCERT में आज भी वो 11th standard में ही है. And name of the chapter in NCERT, transport in plants. NCERT में जो chapter दिया हुआ है वो transport in plants के नाम से दिया हुआ है. Now as per name, what do you mean by this term called plant-water relation? इसका मतलब whenever you observe any plant in nature, कोई भी plant आप nature में देखिए, suppose this is soil, below soil surface you will observe roots are available. The roots which are present in plant body, they are always underground, and above the ground surface you will observe there is formation of aerial part of plant body, and you call that aerial part having stem, branches, leaves, and flower and fruits are formed. These are the aerial part of plant body. ये प्लांट का एरियल पार्ट हुआ जो स्टेम रीजन से डेवलप हुआ है. These are underground part and you call that underground part as roots. These are green and expanded part and you call this green and expanded part as leaves. ठीक है, तो रूट, स्टेम और लीफ यहाँ पर तीन पार्ट प्लांट में डिस्टिंग्विश हुआ है. Here a leaf starts developing from nodal region and in between two node there is a space. That space is called as internode, from where there is no arrangement of any leaf, जहाँ से कोई लीफ का अरेंजमेंट नहीं होता. तो ये लोअर पार्ट हुआ प्लांट का. अंडरग्राउंड पार्ट, दैट अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म्स ए रूट सिस्टम. वो अंडरग्राउंड पार्ट जो है क्या फॉर्म करता है? रूट सिस्टम फॉर्म करता है. और जो एरियल पार्ट है प्लांट का, इट फॉर्म्स द शूट सिस्टम. इट फॉर्म्स द शूट सिस्टम. So here you will observe the plant starts developing. This plant starts developing when you put a seed. ये प्लांट कब डेवलप होगा? जब आप सीड को पुट करोगे. This seed grow, divides and redivides. It absorbs moisture from surrounding and the seed gets well. And once the seed gets well, two delicate structure comes out. You call that delicate structure as sprouts. ये जो सीड से नया जनरेशन डेवलप हुआ है, अंकुरित सीड हो गया है, you call it sprouts. Out of which one sprout grow in descending manner and one delicate structure go in upward manner. तो delicate structure descending manner में जा रहा है, it is called radicle. And this radicle divides and redivides to form root system. And the upper part, upper delicate structure which divides and redivides to form aerial central axis, जो cylindrical axis बनाया है, it is done by a structure called plumule. वो structure किसने डेवलप किया है? plumule ने. इसके अंदर plumule divides and redivides to form shoot system and radicle divides and redivides to form root system. So you know very well. Now we can observe these roots. They are all available in soil particle. Suppose these are the soil particle, dust particle. These are all soil particle. In this soil particle, the roots are available. Now what is the role of this root? Root का क्या रोल है? Root का रोल है water और mineral absorb करना और plant को एक proper position पे fix करना. The major role of root is to absorb water and mineral and fix the plant in a proper position so that plant can't move from one place to another. ये major role हो गया. Means ये जो चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़े हो, 9-10 स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, एंड यू नो सम बेसिक क्वेश्चंस. जैसे पहला बेसिक क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. वन बेसिक क्वेश्चन हियर विल अराइज, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. क्या लिखोगे आप? द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इंक्लूड्स रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, flower, fruit and seed are different parts of plant body in which some parts are descending and some parts are ascending. The parts which are descending are called as root system and the parts which are ascending are called as shoot system. Then what are the functions of various parts of plant body? Second question arise होता है, what are the functions of various parts of plant body? क्या लिखोगे आप इसमें? कौन से parts के क्या क्या function है? Root का function है to absorb water and mineral and fix the plant in proper position. Is it clear? स्टेम का क्या काम है? स्टेम मेक्स द प्लांट इरेक्ट एंड स्ट्रेट. इट मेक्स द प्लांट फ्लेक्सिबल एंड ऑलवेज प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट सो दैट ब्रांचेस विल फॉर्म एंड लीव्स आर फॉर्म. ठीक है, वंस ब्रांचेस एंड लीव्स आर फॉर्म, इट्स ड्यूटी ऑफ स्टेम टू फॉर्म फ्लावर, इट्स ड्यूटी ऑफ स्टेम टू फॉर्म फ्रूट एंड सीड्स. तो ये अलग अलग फंक्शंस हो गए. लीफ का फंक्शन है टू प्रिपेयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर? Now one more basic question arises, which plant tissues are involved in
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन सा प्लांट टिश्यू प्लांट में इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू प्लांट को वाटर मिनरल अवेलेबल होगा। एंड यू नो वेरी वेल दैट ए टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अप इन असेंडिंग मैनर, नेम ऑफ दैट टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम टिश्यू। और वो टिश्यू यहाँ पर जो हेल्प करता है, यू कॉल दैट टिश्यू एज जाइलम। मींस जाइलम इज ए वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है विच कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम सॉइल, देन दैट वाटर गेट्स स्टोर्ड in root system, then that water from root goes in aerial part of plant body up to the top, जिसके कारण प्लांट की बॉडी के सरफेस में, प्लांट के सेल्स में, टिश्यूज में जो वाटर ट्रैवल हो रहा है वो अपवर्ड मैनर में ट्रैवल हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल ट्रैवल हो रहा है। इज इट क्लियर? एंड दैट इज डन बाय ए स्पेशल प्लांट टिश्यू एंड यू कॉल दैट स्पेशल प्लांट टिश्यू एज कंडक्टिंग टिश्यू, transporting tissue, and name of that conducting tissue or transporting tissue is called xylem. Means it's duty of xylem to transport water in up manner. Is it clear? Means when you observe these basic features of plant body, you should know this chapter called plant water relation is kept in a branch of biology, branch of botany, and you call that branch as plant physiology. It is kept in a branch of biology, branch of botany, and you call that branch of botany called as plant physiology. This chapter belongs to a branch called plant physiology. Now what do you mean by plant physiology? Easily you can write a definition of plant physiology, in which large number of chapters we have already studied in your 9th standard. You know details regarding photosynthesis, you know details regarding respiration. Is it clear? Similarly, one more chapter is there called plant physiology, called plant water relation. The father of plant physiology is called as Stephen Hales. Who is father of plant physiology? Stephen Hales is called as father of plant physiology. Now we will define. Plant physiology is a branch of botany which deals with study of life activities, which deals with study of life activities of plant. प्लांट की जिंदगी, प्लांट का जीवन, किस प्रकार प्लांट व्यतीत कर रहा है, किस प्रकार प्लांट के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं, जिसके थ्रू प्लांट के हर सेल को, हर टिश्यू को, हर ऑर्गन को बराबर न्यूट्रिएंट मिलता जाए। ठीक है? और प्लांट एक अच्छी सक्सेस लाइफ एंजॉय करे, उसके लिए एक ब्रांच में अपने को स्टडी करना पड़ेगा, एंड यू कॉल दैट ब्रांच एज प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ हाउ विल यू डिफाइन? प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, ध्यान रखिए क्या बोल रहा हूं मैं सेंटेंस, व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। Means it is defined as a physiological changes. It is defined as a physiological changes occurring within a cell or organism, and any exchange of substances between a cell or organism. कोई भी सेल के अंदर कुछ एक्सचेंज हो रहा है सब्सटेंसेस का, तो भी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। और कोई भी सेल कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस करना चाहता है जिसके थ्रू वो सेल टर्जिड रहे और सिचुएशन आने पर वो सेल फ्लैसिड भी हो जाए, रप्चर भी हो जाए, पंचर भी हो जाए और अपने आप को फ्रेश महसूस करे, ये सब टेक्नोलॉजी जो है इट इज केप्ट इन अ ब्रांच कॉल्ड प्लांट फिजियोलॉजी। ये सब ब्रांच, ये सब टॉपिक जो है इसके अंदर में आएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में आएंगे। नाउ हियर यू वांट टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। व्हाट आर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यू वांट टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर? पानी तो है जमीन में, लेकिन उस वाटर का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, उस वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, दैट यू वांट टू स्टडी इन दिस टॉपिक। डिस्क्राइब डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सो दैट इट मेक्स इट सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल, जिसके थ्रू वाटर जो है एक सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल बन गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्निफिकेंट मॉलिक्यूल इट कनेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसके थ्रू प्लांट बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस जो है प्लांट कर सके, so that some physiological and biological properties of water are there. The first biological property of water is, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। Water is essential for all physiological activities of plant. Water is essential for all physiological activities of plant. जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट करना चाहता है उसके लिए प्लांट को पानी बहुत जरूरी है। सेम थिंग अपना भी देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ से लेकर एंड ऑफ लाइफ तक
डेली रूटीन लाइफ में आप जो भी फ्रूट्स लेते हो, जो भी खाना खा रहे हो, उसमें पानी जो है ड्रिंक करना बहुत जरूरी है। विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव। इवन प्लांट के लिए, प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट वाटर इज हेल्पफुल फॉर प्लांट सो दैट ए फिनोमिना कॉल्ड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। जिसके थ्रू प्लांट में कौन सी फिनोमिना हो पाएगी? फोटोसिंथेसिस फिनोमिना हो पाएगी। इसका मतलब वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट वाटर इज ए रॉ मटेरियल। प्लांट के लिए वाटर क्या है? रॉ मटेरियल है। सो दैट ए physiological process called photosynthesis takes place, so that every green plant prepare its own food। जिसके थ्रू हर ग्रीन प्लांट जो है क्या करेगा? अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा, और वो फूड प्रिपरेशन के लिए प्लांट को वाटर चाहिए। ठीक है, इसलिए फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई यहाँ पर, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट। प्लांट बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, कोई भी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट को वेजिटेटिव पार्ट में करवाना हो या रिप्रोडक्टिव पार्ट में करवाना हो, उसके लिए प्लांट को पानी लगेगा। Second characteristic feature. When you observe the second characteristic feature, water is considered as liquid of life. Water is considered as liquid of life. जीवन ही पानी है, बिगर पानी के जीवन नहीं है, बिगर पानी के जिंदगी नहीं है। That you call it as liquid of life. But in biological world, you call it as elixir. You call it word as elixir. Elixir of life. ठीक है, जिसको क्या बोला गया है? लिक्विड ऑफ लाइफ। तो व्हाट डू मीन? बिकॉज व्हेन यू ऑब्जर्व द लिक्विड ऑफ लाइफ, द लाइफ स्टार्ट फ्रॉम वाटर। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि लाइफ जो है कैसे स्टार्ट हुई है? वाटर से स्टार्ट हुई है। इवन वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अप टू 90 to 95% ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड टिश्यूज। वाटर कॉन्स्टिट्यूट, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सेल के अंदर में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में है, वो 90 to 95% है। इतने, इससे कम अगर पानी हो जाए प्लांट बॉडी में, तो प्लांट के सेल्स जो है वो फ्लैसिड होना चालू हो जाएंगे, श्रिंक होना चालू हो जाएंगे। इसलिए वाटर हेल्प्स द सेल टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप। जिसके थ्रू वाटर प्लांट को क्या हेल्प कर रहा है? वाटर हेल्प्स द प्लांट बॉडी टू मेक द प्लांट टर्जिड and makes the shape proper. Otherwise plant may change their shape and size, जिसके कारण प्लांट जो है, प्लांट के सेल्स, प्लांट के टिश्यूज अपने शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए प्लांट के पास अगर वाटर अवेलेबल है तो प्लांट टर्जिड रहेगा, फ्रेश रहेगा, इजीली अवेलेबल रहेगा, एंड सर्वाइवल रेट ऑल्सो गेट इंक्रीज, और प्लांट का सर्वाइवल रेट भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू ऑब्जर्व द मेटाबॉलिक रिएक्शन, कम टू फोर्थ पॉइंट, when you observe the metabolic reaction, in metabolic processes water takes part directly as a reagent। कोई भी metabolic reaction अगर प्लांट में हो रही हो तो उसमें वाटर ही डायरेक्ट रोल अडॉप्ट करता है, जिसके थ्रू कोई ना कोई रिएजेंट, कोई ना कोई कन्वर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इवन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू ऑब्जर्व द वाटर इन प्लांट बॉडी, वाटर इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोला गया है? वाटर इट एक्ट्स एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। Now why water is called as universal solvent? Because when you observe water, it acts as universal solvent because when you observe the water, it provides the medium in which some substances are dissolved directly। एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वाटर, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंसेस आप इस वाटर में क्या कर सको? डिसॉल्व कर सको। और एक बार सॉइल सरफेस में जो वाटर अवेलेबल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, इसमें अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो गया तो अल्टीमेटली दैट सब्सटेंस इट एक्ट्स एज मिनरल एंड सॉल्ट्स, सो दैट इट्स ड्यूटी ऑफ रूट इज टू एब्सॉर्ब दैट वाटर एंड मिनरल्स, एंड वंस द वाटर मिनरल इज इजीली अवेलेबल टू रूट्स, देन अल्टीमेटली द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी गेट कंटिन्यू एंड इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। और ये क्या हेल्प करेगा? प्लांट की प्रोडक्टिविटी में भी, यील्ड में भी हेल्प करेगा, सो दैट द यील्ड गेट इंक्रीज, जिसके थ्रू यील्ड भी क्या होगी? बढ़ेगी। सो दैट द सॉइल गेट फर्टाइल, जिसके थ्रू सॉइल क्या रहेगी? फर्टाइल रहेगी। तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन अगर रखना हो तो सॉइल में वाटर जो है अवेलेबल करके देना है, और इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और ड्यू टू यूनिवर्सल सॉल्वेंट इट हेल्प्स टू डिसॉल्व एनी टाइप ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जो है इजीली इसमें क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, सो दैट इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी, जिसके थ्रू प्रोडक्टिविटी को भी क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। इफ देयर ऑकर्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द प्रोडक्टिविटी रिड्यूसेस। अगर सॉइल में पानी की कमी है
तो प्रोडक्शन यील्ड कम होगा, ठीक है। इवन विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर व्हेन यू ऑब्जर्व वन प्रॉपर्टी, इट सर्व एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये किसका वर्क कर रहा है? टेम्परेचर स्टेबलाइजर का भी वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबल मेटाबॉलिक रेट, और क्या हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबल मेटाबॉलिक रेट, सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, जो सीजनल चेंज रहते हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान जो प्लांट बॉडी में चेंज आता है, वो सब चेंज जो है आपको प्लांट बॉडी में अवेलेबल नहीं मिलेगा। इवन इट रिएक्ट्स, इट हेल्प्स फॉर हीट, स्पेसिफिक हीट, so that there is always high specific heat, it always have high heat of fusion, it always have high heat of vaporization, and it is helpful for adhesive and cohesive forces. These are the major role, so that every time plant needs water, इसलिए हमेशा प्लांट को क्या लगेगा? वाटर लगेगा। और वो वाटर जो प्लांट को लग रहा है, मिल रहा है, अवेलेबल है, सब रिलेशंस आर डन, so that H2O now become easily यूज बाय प्लांट बॉडी। इसके थ्रू H2O जो प्लांट को मिल रहा है, वो प्लांट इजीली क्या कर सके? उसको यूज कर सके। अब प्लांट के पास जो सोर्सेस है पानी का जो सोर्सेस है प्लांट के पास में, देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। द फर्स्ट सोर्स इज रेन वाटर। सबसे पहला जो सोर्स प्लांट को मिलता है वो रेन वाटर मिल रहा है, ठीक है। सेकंड जो सोर्स प्लांट को मिल रहा है, यू कॉल इट रन अवे वाटर। वन वाटर विच इज अवेलेबल टू सॉइल, ग्राउंड, यू कॉल दैट वाटर एज ग्रेविटेशनल वाटर। You call one water which is available to soil, which is available to plant, is called as capillary water. एक water को capillary water बोला गया है। Even one water which is available to soil, available in ground surface, you call that water as combined water. You call that water as combined water. इस प्रकार बहुत सारा सोर्स है पानी का। अपना भी अगर उदाहरण लिया जाए तो अपने पास भी पानी के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे रिजर्वायर हैं जहां से अपन पानी जो है यूज कर सकते हैं। You call one water as tap water, जो नल में आ रहा है। You call one water as pond water, river water, lake water, whale water, कुएं के द्वारा भी अपन पानी कई बार लेके आते हैं। But out of which can you distinguish which water is good, which water is best for our health? अपन आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा पानी जो है अपने लिए अच्छा है। उसी प्रकार सॉइल में भी बहुत सारा पानी जो है अवेलेबल है। There are varieties of water in soil, sources of water जो है, रिजर्वायर जो है प्लांट के पास में बहुत सारे हैं, जो अपन अलग अलग नाम से उसको जज किए हैं। जिसमें एक वाटर को अपन ने जज किए रन अवे वाटर, एक वाटर को जज किए कंबाइंड वाटर, एक वाटर को जज किए ग्रेविटेशनल वाटर, एक वाटर को जज किए कैपिलरी वाटर। आउट ऑफ विच ओनली वन वाटर इज बेस्ट फॉर प्लांट, एंड ओनली प्लांट यूज दैट वाटर ओनली फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाइल रेस्ट ऑफ द वाटर दे आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट बॉडी। तो बाकी का पानी जो है प्लांट उसको यूटिलाइज ही नहीं करता। उसके जो काम का है वही पानी जो है प्लांट क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। जो प्लांट को, जो वाटर प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, प्लांट के सेल्स, प्लांट के रूट हेयर्स उस पानी को एब्सॉर्ब नहीं करते। जो उसके फायदेमंद है वही पानी जो है प्लांट क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो ऑल दिस बेसिक फीचर्स आर स्टडीड इन दिस चैप्टर कॉल्ड प्लांट वाटर रिलेशन in state board syllabus. While when you observe NCERT syllabus, the name of chapter is transport in plants.